Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. These will be the demo videos. So आप इस आने वाले series में you will be having the glimpse from my live classes. Alright, so this is a pre-recorded video which is an introduction video about my course. If you are planning for CUET 2026 MMSC Psychology or you are planning for the GATE examinations or you are planning for the independent university examinations for the masters such as Jamia, Christ, NFSU, this is the go-to course. Alright, because in this course you will be having access to the live classes. Yes, you heard me right. The Mahayodha batch is specifically tailored to you, to your needs, right? So you will be having almost daily life classes, and in this course, you will be getting access to my all other future upcoming courses. So over this foundation course, which is right now, it has already started. ये हमारा चलेगा. Then उसके बाद एक और मेरा फाउंडेशन बैच होगा, which is the repeated batch, लेकिन वो भी फिर से लाइव चलेगा. उसमें भी आपको एक्सेस दिया जाएगा एंड उसके बाद माय स्पेशल एमसीक्यू बूस्टर सीरीज बैच दैट इज विजेता बैच उसमें भी आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा. And other than this, you will be handed over the PDF notes which are compiled by me, the PPTs, the weekly tests for the topics and revisions, doubt sessions. मेरे से आप पर्सनली कनेक्टेड रहोगे व्हाट्सएप के थ्रू. आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी. अदर दैन दिस आपके मंथली बेसिस पे टेस्ट होंगे. अदर दैन दिस यू विल बी हैविंग एक्सेस टू द 15 मॉक टेस्ट, राइट, जो कि आपके एग्जाम के पहले होंगे. ये सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा. हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास होगी एंड मेरा गाइडेंस एग्जाम के बाद तक भी रहेगा, राइट. इवन माय फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स व्हिच वाज 4 years बैक वो आज तक मुझसे कॉन्टेक्टेड में है, राइट. सो वंस यू विल ज्वाइन दिस बैच, वंस यू विल बी इन कम्युनिकेशन विद मी, वी विल बी रिलेटेड टू ईच अदर टिल वी लिव. ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया तो मैं कौन आप कौन. No, this is the special features for the Study Capital family that if you are enrolling in our course, you will be treated as a family member. All right. So join this course right now. Link is in the description. आप Google Play Store से Study Capital आप download कर सकते हो and then you can join my batch straight forward. अब जो आप लोग वीडियो देखने वाले हो, these will be the parts of my live classes. There is a chance कि quality आपको थोड़ी सी low लगे because these videos have been recorded from the third party app. तो automatically quality low हो जाती है. But in the live classes and when you will see the classes in your app after joining batch, the quality of the lectures will be improved automatically because ये screen recorded videos हैं. Just to have an idea कैसे हमारी live classes run करती हैं, मैं actually में कैसे पढ़ाता हूँ. And आपको और भी details चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो. यू विल फाइंड माय सो मेनी वीडियोस वेयर आई एम टीचिंग डिफरेंट टॉपिक्स. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग. Good evening, everyone. Good evening. All good? All right. चलिए. So कल की क्लास से किसी को कोई प्रॉब्लम है? Anything you want to ask from yesterday's class? कुछ ऐसा है जो पूछना है आप लोग को? Anything? बताइए. कुछ ऐसा है जो आप लोग को पूछना है? Okay. So today I'm gonna tell you कि हम कौन-कौन सी theories को basically पढ़ने वाले हैं in our intelligence topic. ठीक है? So we'll go through with the theories. जैसे we'll study about the Spearman's theory, फिर Thurston की theory है, then you have Gardner's theory, Sternberg की triarchic theory, Jensen की theory, past theory. We'll talk about emotional intelligence and lot of things. ठीक है? तो ये कुछ चीजें आप लोग को याद रखनी है. ओके. चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग. So basically what you have to study and what you have till now studies is basically about the intelligence. The intelligence क्या है? The first intelligence test was given by Alfred Binet and the first intelligence test जिसने IQ concept use किया that was a term. यहाँ तक हम लोगों ने बात करी है. Now we'll start with some
थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सो अगेन इन टॉपिक्स में आपको ये नहीं बोलना है या ये नहीं सोचना है कि सर दिस थ्योरी इज करेक्ट एंड दिस थ्योरी इज रॉन्ग। नो, again as I've said, every theory has some pros and cons, and that is not the concern for the exam. Main points will be from which theory was given by whom. ये आपका पहला क्वेश्चन होगा कि ये थ्योरी दी किसने, एंड द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑब्वियसली कि इस थ्योरी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये दो चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग द फर्स्ट थ्योरी दैट इज स्पीयरमैन्स थ्योरी। इसको हम बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। सो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन आपने पढ़ा, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपने पढ़ा। नाउ इट्स टाइम आप टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ो, ठीक है। सो व्हाट डज दिस थ्योरी सेज? दिस थ्योरी एक्चुअली टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ऑलराइट। This theory talks about two types of intelligence. What is it? One is one is the general intelligence, ठीक है, and another one is basically the specific intelligence, ठीक है। सिंपल है। जनरल इंटेलिजेंस को बोला इन्होंने जी फैक्टर, जी से जनरल, एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को उन्होंने बोला एस फैक्टर, एस से स्पेसिफिक। Now, what all these two things are? देखो, Spearman said that every person has intelligence, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट जिसने IQ कंसेप्ट दिया था वो टर्मन है, राइट। IQ को कंसेप्ट दिया था, आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा है पहली बात तो, ठीक है। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जिसने IQ का कंसेप्ट यूज किया वो है टर्मन का टेस्ट, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत था, okay. So I was saying that Spearman said that every person has a intelligence, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है। So first point would be that every human being has some kind of intelligence, और इसी को स्पीयरमैन ने बोला that this is the general intelligence which is with everyone. हर इंसान के पास जनरल इंटेलिजेंस होती है, मेल, फीमेल, चाइल्ड, अडल्ट, रिच, पुअर, अर्बन, रूरल, सबके पास एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो सब में कॉमन होती है, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस, ठीक। जैसे यू नो हाउ टू ईट फूड, एक अमीर इंसान को भी पता है खाना कैसे खाते हैं, गरीब इंसान को भी पता है खाना कैसे खाते हैं, राइट। आप सबको चलना आता है, आप सबको बात करना आता है, राइट। आप सबको ऐसे कंघी करना आता होगा, राइट। दीज आर सम थिंग्स व्हिच कैन बी डन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। अब यहाँ पे मैं उनकी बात नहीं करूंगा कि सर पीपल हु आर नॉट मेंटली फिट वो ये सब कैसे करेंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। These theories will be mostly dealing with people who are having normal population or normal intelligence, ठीक है। ये आम लोगों की बात होगी, specifically people who are suffering from any kind of developmental problem or mental या intelligent problem, intellectual disabilities, उसके लिए concepts अलग हो जाते हैं, clear? So general intelligence is basically this this like common intelligence which is present in every person. इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस, एकदम आम इंटेलिजेंस की बात हो रही है, राइट। बट देन देयर आर सम पीपल हु आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, हु आर वेरी गुड एट मैथ्स, हु आर वेरी गुड एट साइकोलॉजी, हु आर वेरी गुड एट मॉडलिंग, हु आर वेरी गुड एट पेंटिंग, है ना। तो कुछ इंटेलिजेंस तो है जो सभी के पास कॉमन है, ठीक है। बट देयर आर देन सम पीपल जिनके पास कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स की इंटेलिजेंस होती है, राइट। कोई इंसान गिटार बहुत अच्छा बजाता है, कोई इंसान डांस बहुत अच्छा करता है, सम कैन कुक वेरी गुड, राइट। तो ये जो स्पेसिफिक चीजों के लिए आपकी जो इंटेलिजेंस है दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर। हम यहाँ इसकी बात नहीं करेंगे कि सर ये तो टैलेंट हो गया, ये तो स्किल हो गई, नहीं। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में बताई। आई अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें टैलेंट है, स्किल है ना, बट मैं आपको स्पीयरमैन की थ्योरी अभी बता रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, all these activities which are some specific, which need some specific things,
वी आर एबल टू डू दिस थिंग्स बिकॉज हमारे पास एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर है। जिसके पास गिटार के लिए स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होगी वही गिटार बजा पाएगा, राइट। मेरे पास गिटार की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं, तो मैं गिटार नहीं बजा पाता। मेरे पास ड्रम्स की एस फैक्टर है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, सो आई कैन प्ले ड्रम्स। ठीक है, तो ये है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कंसेप्ट। देन बेस्ड ऑन दिस हाउ वी नोटिस पीपल हु डिड वेल ऑन वन टेस्ट टेंडेड टू डू सिमिलरली वेल ऑन अदर टेस्ट। यानी कि ये जनरल इंटेलिजेंस का उसने कंसेप्ट यहाँ से फिगर आउट किया दैट पीपल हु आर एक्चुअली इंटेलिजेंट, है ना, तो उन्हें चाहे मैथ्स का टेस्ट दे दो, चाहे साइकोलॉजी का टेस्ट दे दो, चाहे आप रीजनिंग का टेस्ट दे दो, दे विल परफॉर्म गुड, राइट। तो इससे स्पीयरमैन को ये पता चला कि हाँ देयर इज सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस विच इज कॉमन। अगर कोई इंसान खाना अच्छा बना लेता है सो ही मस्ट बी गुड इन कुकिंग वेज, ही मस्ट बी कुकिंग ऑल्सो गुड इन नॉन वेज। ऐसा हो सकता है कि अगर एक इंसान को अच्छा खाना बनाना आता है तो वो दाल चावल से लेकर कॉन्टिनेंटल अच्छा खासा बना लेता है। लेकिन if there is a person who knows cooking but he can only cook Indian, he can only cook Chinese, तो अगर जहाँ भी स्पेसिफिक चीजों की बात हो जा रही होती है वहां पे हम यूज करते हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अदरवाइज जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, there are two types of intelligence and that is why this theory is known as two factor theory of intelligence। क्लियर है? तो क्लियर है आप लोग को ये चीज? यस और नो? क्लियर? स्पीयरमैन की थ्योरी से क्वेश्चन कैसे आते हैं? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ जी फैक्टर, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ एस फैक्टर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, देन देयर इज दिस क्वेश्चन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कर लोगे आप लोग? कंफ्यूज नहीं होगा इसमें? ओके, नाउ देयर इज दिस वेरी यूनिक फिनोमेना एंड ये इस थ्योरी का पार्ट नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इस स्लाइड में जगह बच रही थी इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये इस थ्योरी से अलग है। लेट मी ड्रॉ लाइन वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये खत्म, यहाँ थ्योरी खत्म। नाउ विल टॉक अबाउट फ्लिन इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट ये इफेक्ट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक, काफी फेमस पीवाईक्यूज में। Flynn effect refers to a increase in population intelligence quotient यानी कि IQ observed throughout the 20th century. The changes were rapid with measured intelligence typically increasing around 3 IQ points per decade. अब ये है क्या स्पेसिफिक, किस चीज की बात हो रही है समझे? देखो Flynn effect का मतलब क्या होता है? सिंपली that it has been seen with the research, it has been observed कि जैसे जैसे हर 10 साल में चीजें चेंज हो रही हैं, राइट, एवरी 10 ईयर देयर इज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू, है ना, हर रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर 5-6 साल में बहुत सारे न्यू गैजेट्स आ रहे हैं, राइट। कंपेयर करो 2025 में वर्सेस टेक्नोलॉजी ऑफ 2015 वर्सेस टेक्नोलॉजी ऑफ 25, राइट। 2005 में क्या था, 2015 में क्या था, 2025 में क्या है, 1995 में कैसा रहा होगा, राइट। सो एक डेकेडियल बेसिस पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट पॉपुलेशन का जो एक एवरेज आईक्यू है, जो एवरेज इंटेलिजेंस है, वो